Do in your notebook, jaldi se karke you'll send me. So good morning everyone and welcome back to your EVS class. Before starting the class, I would like to tell you all is that अच्छे से सुनो. The work that I am sending you all in your notebook are extra questions that are not in the textbook. The textbook questions that are given in only textbook, उसके answers I am giving you all. वो answers तो मैं तुमको वैसे ही क्लास में दे रही हूँ. तो there is no need of giving, तो जरूरत नहीं है that I give you all that work, कि मैं तुमको वो वाला वर्क तुमको वापस से दूं. If you want it, I'll give you. लेकिन then you will have lot of work to write. तो लिखने के लिए बहुत सारा काम हो जाएगा. Okay. So now today we are going to start a new lesson, changing times. Like earlier we have done a lesson, its name was changing families. There was few reasons for changes in the family. But now we are going to learn about changing times. Like now also we see, if we go 1 or 2 year back, अगर हम 1 या 2 साल पीछे जाएंगे, तो टाइम वॉज डिफरेंट. वी ऑल यूज टू गो आउट. हम लोग बाहर जाते थे, मॉल्स में जाते थे, घूमने जाते थे, बहुत सारी पार्टीज करते थे, स्कूल आते थे बच्चे, है ना. बट नाउ व्हाट हाउ इट इज, now children are not coming to the school, children are not meeting the teacher is not able to see the children. लेकिन वी आर लुकिंग एट ईच अदर वर्चुअली. हम लोग वर्चुअल टीचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं. तो टाइम हैज चेंज, टाइम थोड़ा चेंज हो गया. पीपल गेट स्केर्ड टू गो आउट इन क्राउडेड प्लेसेस. अब हमको क्राउडी प्लेसेस में जाना थोड़ा मुश्किल हो गया. और क्या चेंज हुआ है, whenever we are going out we are using something on our face. हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं अभी, मास्क. when we go 2 years back, 1 साल पहले या 1.5 years पहले जाएंगे तो life was different. Similarly, when we go back many years ago, 1947 के पहले जब हमको इंडिपेंडेंस मिला था, अगर हम उसके पहले जाएंगे तो life was different. हमारा इंडिया का मैप was also different, है ना. It was before the partition of India and Pakistan. जब हमारे इंडिया के साथ में पाकिस्तान का मैप में कनेक्टेड था. Now like when we see our India का मैप is like this. Earlier it was not like this. वो ऐसा था, ये वाला लाइन नहीं था. When India and Pakistan were together, then after some years what happened? There was a partition between India and Pakistan. किसमें पार्टीशन हुआ था? पार्टीशन का मतलब, विनीत व्हाट डू यू मीन बाय पार्टीशन? बंटवारा. बंटवारा हो गया था उनका. इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था. दे वर सेपरेटेड, है ना. सो पाकिस्तान सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 14th of August एंड वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th of August. तो जब ये पार्टीशन हुआ था उसके पहले टाइम थोड़ा अलग था. पार्टीशन के बाद में हमारा इंडिया का मैप ही अलग हो गया. वहां पे एक बॉर्डर वाली लाइन हो गई, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है हमारी, जहाँ पे बॉर्डर पे आजकल करगिल की वॉर चलती रहती है. इट इज इन अ सिमिलर वे, इट इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हमारी लाइफ में और तुम्हारी लाइफ में नाउ ओनली देयर इज चेंज इन टाइम्स, चेंजिंग टाइम्स. व्हेन यू विल ग्रो ओल्ड, और जब छोटे बच्चे होंगे तभी भी दिस विल बी रिटन इन हिस्ट्री. तभी भी ये लिखा जाएगा कि ईयर कौन सा ईयर था, 2020 एंड 21 में what happened in the world, क्या हुआ था पूरी दुनिया में. There was a pandemic called coronavirus, because of which people were not able to go out in the crowded places or go out from their homes, है ना. ये changing times था. Now we are learning about something that happened in the history में हुआ था. The map of India was in this way. हमारा जो इंडिया का मैप था वो पहले ऐसा था. See, ये कश्मीर के ऊपर ये पाकिस्तान वाला पार्ट was also there. This border line was not there. See, this line was not there. ये पूरा यहाँ से लेकर this was only the border. Okay, so this was connected. What happened after partition? जब partition हुआ, और partition के भी पहले क्या था, इंडिया को कौन रूल करता था? Who used to rule over India? British Army. British people used to rule over India and Indians used to work for them. Indians को उनके लिए काम करना पड़ता था. Then we got by the very so many freedom fighters थे जिनकी हेल्प से we all got dash from the British people. हमको ब्रिटिश लोगों से क्या मिला था? भगत सिंह. फ्रीडम, विक्ट्री.
फ्रीडम इंडिपेंडेंट फ्रीडम मिला था। सुभाष चंद्र बोस फ्रीडम मैम बांग्लादेश भी पहले इंडिया में ही था। एक मिनट। So we got freedom from them. We got freedom from, एक मिनट, I am downloading. हेलो Freedom from the British people. जब हमको फ्रीडम मिला ब्रिटिश पीपल से in 1947, what was the date? कौन सी डेट को मिला था? We got freedom from them. 3 अगस्त 1947 जो अभी हमने थोड़े दिन पहले हमारा 1947, 15 अगस्त 1947 को we got, I am not getting this. Okay. मैम Wait, one minute, wait. So we got freedom from British people. हाँ, that's why we celebrate Independence Day. जो हमने अभी स्वतंत्रता दिवस Independence Day celebration किया था, it is because we got freedom from the British people. तो तभी भी तब का टाइम और अभी का टाइम is so much different. उस टाइम में और अभी के टाइम में इज देयर लॉट ऑफ डिफरेंस, चेंजिंग टाइम्स, ऐसे ही टाइम चेंज हुआ है। उसके बाद में देयर वाज पार्टीशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान में पार्टीशन हो गया, एंड देन वी स्टार्टेड फाइटिंग विद ईच अदर, बोथ द कंट्रीज दे हैव स्टार्टेड, दैट वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडिया का ही पार्ट था, एंड आवर मैप ऑफ इंडिया वाज इन अ डिफरेंट वे, अलग टाइप का मैप था। नाउ वी हैव अ डिफरेंट मैप ऑफ इंडिया, लाइक आई शोड यू जस्ट नाउ, एक अभी मैप दिखाया था ना, तो आवर मैप वाज लाइक दैट। एंड व्हाट हैपेंड दैट टाइम, जब हमारे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, सी हाउ पीपल हैव टू लीव देयर प्लेसेस, सम पीपल हु वर लिविंग इन इंडिया, द पार्ट ऑफ इंडिया, एंड दे वांट टू गो टू द पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान वाले हिस्से में कुछ लोगों का घर था, लेकिन उनको इंडिया में आना था, तो दे हैव टू कम टू इंडिया, तो वो इंडिया आ गए। यू मस्ट हैव सीन द मूवी भाग मिल्खा भाग, मूवी देखी होगी सब बच्चों ने। उस मूवी में भी देखा होगा तुमने, जो मिल्खा सिंह थे, उनकी फैमिली यूज्ड टू लिव इन द पार्ट विच इज इन पाकिस्तान नाउ, and they have to leave that place, वो and they have लाहौर में रहते थे जो पाकिस्तान के अंदर है अभी। हाँ, लेकिन उनको वो छोड़ के आना पड़ा था, उनके मम्मी पापा को। कितनी सारी नेगेटिव चीजें हुई ना। इन दिस पिक्चर ऑल्सो यू ऑल कैन सी पीपल आर डाइंग टू, अभी लोग इधर उधर जाने के लिए, दे आर डाइंग टू कम टू इंडिया, एंड सम आर डाइंग टू गो टू अदर कंट्री। ऑल दीज थिंग्स, ये जो नेगेटिविटी है ना, इट शुड नॉट बी देयर इन द वर्ल्ड। ये सब नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए दुनिया में। लाइक नाउ डेज चिल्ड्रन हु ऑल आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे या जो न्यूज देखते होंगे, सेम टाइप ऑफ थिंग, सेम टाइप ऑफ थिंग नाउअडेज इज हैपनिंग। कहाँ पे हो रहा है ये सब प्रॉब्लम? पाकिस्तान में। यस, तो न्यूज देखना कर लिया है। हाँ, अभी ये पूरी चीज लाइक हाँ, म्यूट योरसेल्फ। ये सारी चीजें जो मैंने अभी तुमको दिखाया कि ट्रेन में लोग ऊपर बैठे हैं, साइड में बैठे हैं, सेम थिंग इज हैपनिंग इन नाउअडेज आल्सो। अभी अफगानिस्तान, तालिबान, और वो तुमने प्लेन वाला सीन देखा होगा, सेम ऐसा ही सीन है। इसमें पीपल आर सिटिंग ऑन द ट्रेन फॉर देयर लाइफ, अपनी जान बचाने के लिए दे आर कमिंग बाय ट्रेन से आ रहे हैं। लेकिन आजकल जो अफगानिस्तान वाला सीन है उसमें, हाँ, so all these things, ऐसा we feel that there is no change, like nowadays we are sitting at home and we are learning through online mode, है ना? तो टाइम चेंज हुआ है, बट वी आर नॉट फीलिंग इट। तुम लोगों को और हम लोगों को फील नहीं हो रहा है, बिकॉज वी आर गेटिंग, हम लोग घर में हैं, हमारा जॉब है, तुम्हारे मम्मी पापा का जॉब है, लेकिन देर आर मेनी पीपल हु आर जॉबलेस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर जॉब करते थे डेली वेजेस में, हर दिन जाके जॉब करते थे, तो उनका अर्निंग होता था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, उन लोगों का अर्निंग चला गया, उनका है ना, उनका अर्निंग कम हो गया, तो उन लोगों को मनी का भी प्रॉब्लम होने लगा। कुछ बच्चों के पास, जिनके पास मोबाइल फोन्स नहीं है, उनको फोन्स खरीदने पड़े, या उनको डाटा के लिए दे डोंट हैव मनी। सो वी शुड रियलाइज व्हाट एवर प्रॉब्लम। अभी अफगानिस्तान वाला न्यूज तुम लोग आज देखना प्लीज, हाँ, और न्यूज़पेपर होगा तो न्यूज़पेपर भी रीड करना
कि देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन एंड सो मेनी पीपल हु आर सफरिंग नाउ, उनका घर नहीं है, उनको कहीं रहने नहीं मिल रहा है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू लिव. सिमिलरली व्हेन यू सॉ दैट मूवी, देखी होगी भाग मिल्खा में, उसकी पूरी फैमिली उधर रह गई एंड ही अलोन, दैट चाइल्ड, ही स्ट्रगल्ड टू सेव हिज लाइफ. उसने अपनी लाइफ को कैसे तो सेव किया. देखा है ना? इफ यू हैव नॉट सीन, प्लीज सी दैट मूवी, यू विल अंडरस्टैंड. सेम वे इन दिस लेसन, ये जो हम लेसन पढ़ने वाले हैं, इस लेसन में भी देयर इज अ फैमिली हु हैज टू कम फ्रॉम अनदर कंट्री, दूसरी जगह से आकर के they have to live in other place. What were the changes that happened in their life that we are going to learn in this lesson? Changing time. This story is about a man called, his name is Chetan Das. Underline this, okay? Have I shared the screen? No. Okay. So in this unit we are going to learn about this man, Chetan Das. My name is Chetan Das. Chetan Das is telling us a story about his life, how change happened in his life. My name is Chetan Das. Many years ago, I used to teach children like you. This story is about a man जिसका नाम चेतन दास है. बहुत साल पहले वो भी बच्चों को पढ़ाता था. These days, I spend my time by writing about the days when I was young. अब जब वो ओल्ड हो गया and he doesn't have work, तो वो क्या करता है, वो बैठकर उस टाइम पर उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ था जब वो यंग था. He started thinking of all these things and started to write in his diary. I would love to share some of these with you. Now we are going to learn. This is the picture that I showed you just now. अभी ऐसे एक पिक्चर दिखाई थी ना तुमको. A big move. अगर किसी की लाइफ में ऐसा हो, like somehow it happens कि तुम you have to leave your country. सिटी छोड़ने से ही we feel so much change. अगर you have to leave your place, राजस्थान जहाँ पे तुम born हुए हो, यहाँ से you have to go to some other place, so you will feel there is a big move in your life, big change in your life. But if you have to leave your country, अब तुम्हें इंडिया छोड़कर अगर पाकिस्तान में जाके रहना पड़े या अमेरिका में जाके रहना पड़े, तो तुम्हारी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे and you will feel the change in your life, maybe for the better, maybe for the bad, है ना? ऐसा भी हो सकता है कि बहुत अच्छा चेंज आ जाए तुम्हारी लाइफ में. So this man Chetan Das is telling about a big move. I remember the time when I was 9 years old. Chetan Das is telling he is remembering the time when he was very small. How old was he then? 9 years old. It must have been over 60 years ago. शायद 60 साल पुरानी बात he is writing. इसका मतलब वो अभी कितने years का हो गया होगा? 69 years. 69 years का हो गया होगा. Okay. 69 years. So you underline this also. That was when we lived in डेरा गाजी खान. उस समय पे वो लोग डेरा गाजी खान में रहते थे जो पाकिस्तान में है. In exam we can give you to mark the this country also. पाकिस्तान मार्क करने के लिए भी आ सकता है. So he used to live in a place जिसका नाम है डेरा गाजी खान. डेरा गाजी खान is in Pakistan. Okay. So underline this, Dera Ghazi Khan. Today this place is in Pakistan. At that time there were lot of problems all around us. उस समय पर जब वो छोटे थे, बहुत सारे ऐसे लोग जो पाकिस्तान में थे और उनको इंडिया आना पड़ा या पाकिस्तान में ही रह गए. उनकी लाइफ में जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनकी लाइफ में कितना प्रॉब्लम हुआ होगा. I could not understand what was happening. When he was small, he was only 9 years old. तो उसने ये सब पार्टीशन और लड़ाई, कोई किसी को मार रहा है ना, वो सब देखा तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. वन डे बाबा टोल्ड अस, एक बार उसके बाबा ने उसे बोला दैट वी हैड टू लीव आवर विलेज. हमें अपना गांव छोड़कर जाना पड़ेगा एंड मूव टू अनदर प्लेस, और हमें एक नई जगह जाना पड़ेगा. आई वॉज सैड टू लीव माई हाउस एंड माई विलेज. एंड चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े लोग भी होते हैं, इफ आई आस्क यू टू लीव योर हाउस, की घर छोड़ के भी जाना पड़ेगा क्योंकि आसपास पार्टीशन और बहुत प्रॉब्लम और लड़ाई चल रही है, तो यू विल फील सैड. सेम वे दिस चेतन दास ऑल्सो फेल्ट वेरी सैड. दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल ऑफ अस, बाबा, अम्मा, माई यंगर ब्रदर, सिस्टर. आई टुक अ ट्रेन टू कम हियर. देन दे बोर्डेड अ ट्रेन. उन लोगों ने एक ट्रेन ली, जैसे तुम्हें मैंने एक पिक्चर में दिखाया था, दिस पिक्चर. This way they all packed their things, whatever they can pack. सोचो कितना कम इस तरह से सामान लेकर हमें हमारा घर छोड़कर
इस तरह से in a train they have to come to another place just for saving their life. I took a train to come here near Delhi. और उन्होंने वो ट्रेन लेकर they came to Delhi. दिल्ली आ गए. Like us, many people from our area also moved. उनके एरिया के बहुत सारे लोगों को इस तरह से अपनी प्लेस को छोड़ करके आना पड़ा. People were saying that our country was being divided into two, India and Pakistan. तब उसने अपने बड़े लोगों से सुना होगा कि हमारी जो कंट्री इंडिया थी, जो पूरी एक कंट्री थी, ऐसे यू कैन सी इन दिस मैप, ये पूरा एक था बॉर्डर. उसने ऐसा सुना बड़े लोगों से कि अब वो डिवाइड होके पार्टीशन हो गया है एंड नाउ इंडिया इन दिस मैप यू कैन सी. ऐसा था मैप हमें, ये देखो. लेकिन इस टाइम पे ये वाला इंडिया ब्रिटिश इंडिया था, जिस पर ब्रिटिश लोग राज करते थे, रूल करते थे. दे यूज्ड टू रूल ऑन इंडियंस. हम लोग उनके स्लेव्स थे. द मैप ऑफ इंडिया वाज इन दिस वे. बट देन व्हेन वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स, जब हमें ब्रिटिशर्स से फ्रीडम मिला, दैट टाइम वी had a division between partition between India and Pakistan. If you want to know more about it, if you are curious to know about all these things, you should read. Google में read करना चाहिए, है ना? So there was a partition means division between India and Pakistan. This he has heard from someone. उसने ऐसा सुना. People were saying that our country was divided into two, India and Pakistan. Many people from India went to Pakistan just like we moved to India. जैसे वो लोग पाकिस्तान वाला पार्ट छोड़कर इंडिया वाले पार्ट में आ गए, ऐसे बहुत सारे लोग इंडिया वाला पार्ट छोड़ के पाकिस्तान वाले पार्ट में चले गए. For some time we all stayed in a camp. फिर जब ऐसा कभी होता है, जब पार्टीशन या ऐसा कुछ होता है, तो ये जो लोग होते हैं जिनके पास घर नहीं होता, उनको बोलते हैं रिफ्यूजीज, है ना? अभी उनको घर नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट या कोई हेड्स या कोई अगर हेल्पिंग वाला लोग, सोशल वर्कर्स होते हैं, दे प्रोवाइड देम कैंप. उनको कैंप दिया जाता है. उस कैंप में रहकर दे कैन लिव फॉर सम टाइम, टिल देन दे गेट सम होम टू लिव. जब तक उन्हें घर नहीं मिलता तब तक एक टेंट में रहना पड़ता है. वी लिव्ड इन बिग टेंट्स दैट वर पुट अप इन द ह्यूज ग्राउंड. एक बड़ा सा ग्राउंड लेकर उस ग्राउंड में ऐसे लोगों के लिए दे पुट टेंट्स. उस टेंट में दे यूज्ड टू लिव. अ न्यू होम. अब जब वो लोग दिल्ली में आ गए, दिल्ली आने के बाद में थोड़े दिन तक किस में रहना पड़ा उनको? दे हैव टू लिव इन टेंट्स फॉर सम टाइम, बट देन दे गॉट न्यू होम. अ न्यू होम. वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन सोहना विलेज. फिर बाबा को किसी ने बताया कि हरियाणा के, यहाँ पे है हरियाणा के एक सोहना विलेज में उन लोगों को एक छोटा सा लैंड दिया है. उस लैंड पे दे कैन मेक देयर हाउस. सो नाउ विच स्टेट यू ऑल हैव टू मार्क? ये वाला हरियाणा वाला पार्ट यू ऑल हैव टू मार्क. ओके, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको कहाँ पे घर दिया? लक्ष्यवर्धन. वेयर डिड दे गेट द लैंड टू मेक हाउस? दे गॉट द लैंड. हरियाणा वाले ग्राउंड, एक फील्ड में दिया, हरियाणा वाले सोहना विलेज में दिया. सोहना विलेज, ये याद रखना है. दे गॉट द लैंड. फर्स्ट व्हेन दे केम फ्रॉम, जब वो लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए तो वो लोग कौन सी प्लेस में आए? दिल्ली में आए. दिल्ली में उनको कहाँ पे रहना पड़ा? कैंप में रहना पड़ा. आफ्टर दैट दे वर गिवन लैंड इन सोहना विलेज ऑफ हरियाणा. ओके, these all things you have to keep in your mind. Okay, you can write it down somewhere or mark in a textbook. Okay, he said that we could build our house there. I was very happy. फिर उनको गवर्नमेंट ने बताया होगा, तो बाबा ने बताया कि यहाँ पर अब वो लोग अपना घर बना सकते हैं. बाबा एंड अम्मा वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस. बाबा ने और अम्मा ने बहुत मेहनत की घर बनाने के लिए. वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प. फिर वो बच्चों के को भी हेल्प करना पड़ा, मम्मी पापा का. बाबा डग द सॉइल, मिट्टी खोदी. वी क्विकली फिल द पैन्स को भरा एंड देन दे मिक्स्ड हस्क इनटू इट. ये देखो ऐसे हस्क वाले, ऐसा वाला हस्क वाला यूज करके दे मेड अ हाउस, है ना. दिस इज कॉल्ड HUSK, हस्क. हस्क मीन्स जहाँ पे सोहना विलेज की स्पेलिंग गलत लिखी है, उसमें ए नहीं आता. मैम, जो वीट के गोल्डन बात रहते हैं वो, जो हमारे नाउन्स होते हैं ना, प्रॉपर नाउन्स, उसमें योर
स्पेलिंग कैन बी चेंज, थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो नो प्रॉब्लम, है ना। सोहना, एक्चुअल में इट इज सोहना विलेज। कुछ नहीं होता है, लाइक आई कैन राइट ESHA ईशा ऑल्सो, ISHA ईशा ऑल्सो, बोथ आर करेक्ट। ये तो खैर प्लेस का नेम है, इट शुड बी करेक्ट, सोहना विलेज, ओके करेक्टेड, इसको लिख लो वहां पर। तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, हस्क का मतलब होता है सूखी हुई घास होती है ना, छोटी छोटी हस्क, दैट इज कॉल्ड हस्क। को यूज करके उन्होंने मिट्टी में मिट्टी खोदी, उसमें पानी डाला, थोड़ा हस्क डाला, थोड़ा काउडंग डाला, दिस इज काउडंग। आसपास के, अच्छा आई हैव नॉट शेयर्ड स्क्रीन, see this is cow dung, this people used to make, they mix it in mud में मिक्स करते हैं, और इस तरह के जो मिट्टी के घर होते हैं उनको नीचे से उनका फ्लोरिंग वगैरह इससे कर देते हैं। एंड फॉर दिस रूफ वाला पार्ट के लिए कीकर और नीम, कीकर एक ट्री होता है जिससे इंसेक्ट घर में नहीं आते, ये कीकर का पेड़ है ना। ऐसे कीकर एंड नीम को यूज करके व्हाट दे डू, दे मेक हाउसेज ऑफ मड। ये जो पूरे वॉल्स दिख रहे हैं तुमको, ये घर के, ये मिट्टी के बने हुए हैं, है ना। इसमें मिट्टी में व्हाट ऑल थिंग्स दे मिक्स काउडंग, काउडंग मिक्स करते हैं, दिस इज काउडंग, ये देखो काउडंग, ये यहाँ पे राजस्थान में मेनी प्लेसेस में तुमको देखने मिलेगा काउडंग। काउडंग ऑल्सो कीप द इंसेक्ट्स अवे, काउडंग को मड में मिक्स करके, सी काउडंग को दे मिक्स इन द मड and then they mix some water in it and then they use it for flooring, और वॉल पे लगाते हैं जिससे इंसेक्ट्स घर में नहीं आते। और रूफ बनाने के लिए, छत बनाने के लिए कीकर और नीम के पत्ते यूज करते हैं, उससे भी नो इंसेक्ट। मैम ये मेरे गांव में ऐसे बने हुए हैं। हाँ, यहाँ पे भी हम कभी जाएंगे तो पास के गांव में, जब तुम कभी कोटा जाओगे तो तुम अभी whenever you go, गांव में भी जाते हैं है ना, ऐसे हस्क मेरे यहाँ पे भी बने हुए हैं, जिससे है ना ऐसे। मैम ऐसे बीच में बोलना नहीं है बिना रेज हैंड किए, फर्स्ट थिंग। सेकंड, whenever you will go to कोटा, अब कभी कोटा जाओगे तो, या हमारे यहाँ पे बारुली मंदिर के आसपास में भी घर हैं, तो तुम उसको ठीक से ऑब्जर्वेशन करो कि वो घर कैसे बने हुए हैं, लोग क्या क्या कर रहे हैं, पानी का कैसे अरेंजमेंट है। यस भूमिका। मैम काउडंग मतलब वो होता है ना, मैंने भी पिक्चर दिखाया ना तुमको, द वेस्ट ऑफ, ये रहा काउडंग, मतलब ये रहा काउडंग, ये दिख रहा है काउडंग, दिस इज काउडंग, दिख रहा है काउडंग। ये बहुत सारे गांव में आसपास, इट इज, इसको आग जलाने के लिए चूल्हे में भी यूज करते हैं, जिसको उपले बोलते हैं हिंदी में, उपले बोलते हैं ना हिंदी में वो। मैम हमारे पास काउडंग पड़े हैं ऐसे गोल गोल। हमारे रावतबाटा में एक मिनट, म्यूट योरसेल्फ, रावतबाटा में एक बायोगैस प्लांट भी है जिसमें काउडंग यूज होता है। तो तुम लोग कभी कहाँ पे देखा था मैंने, when you go from here, जहाँ पे मिल्क मैन पूरे रहते हैं उस जगह पर they have biogas plant, that is also, in that also cow dung is used। और तुम वैसे भी जाओगे पास के गांव में तो you will see this। कम से कम पिक्चर देख के थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश किया करो। when I showed you picture, नो, थोड़ा सा जो हमने देखी है चीजें उससे रिकॉल करने की कोशिश करो, ओके। मैम काउडंग मतलब कंडा होता है ना। हाँ, उपले, उपले कंडे, ये वाले, ये देखो जो घरों के ऊपर ऐसे चिपका देते हैं। ओके नाउ म्यूट योरसेल्फ एवरीवन, म्यूट। ओके, बाबा डग द सॉइल, बाबा ने मिट्टी खोदी, एंड वी क्विकली फिल द पैन, बच्चों ने फटाफट पैन में मिट्टी भरा। प्लीज म्यूट योरसेल्फ चिल्ड्रन। अब जो अनम्यूट होगा उसको मैं क्लास से निकाल देने वाली हूँ, म्यूट योरसेल्फ। ओके, एंड पास देम टू अम्मा, ऐसे भर के वो अम्मा को पास कर रहे थे। एंड देन दे मेड हाउस, गुड़िया एंड अम्मा मिक्स्ड हस्क इन इट, गुड़िया और अम्मा ने उसमें हस्क मतलब ड्राई वाली ग्रास मिक्स कर दी। बाबा पुट अप द वॉल्स, बाबा ने वॉल्स पुट अप की, दीवार बनाई। वी ब्रॉट काउडंग फ्रॉम नियर बाय हाउसेस, आसपास के घरों से जाकर वो लोग काउडंग लेकर आए। सो व्हाट यू ऑल हैव टू अंडरलाइन, सॉइल को अंडरलाइन करो, हस्क को अंडरलाइन करो, काउडंग को अंडरलाइन करो। अम्मा मिक्स इट विद द मड, अम्मा ने उसको मिट्टी में मिक्स किया काउडंग को। काउडंग किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि काउडंग यूज करने से इंसेक्ट्स नहीं आते और उनका वो मिक्सचर बन जाता है फ्लोर और वॉल पे लगाने के लिए।
just like she used to do in our old houses. Amma used to say that this would keep the insect away. Now, if I ask you a question, why cow dung is used for flooring and walls? To keep the, why cow dung is used? Insects away. Insect away. Insect away. To keep the insects away. Mute yourself, everyone. Cow dung is used to, Ma'am, cow dung is used to keep the insects away. Insects को दूर रखने के लिए. पुराने जो घर होते थे, प्लीज म्यूट. हाँ, कौन बोल रहा है? रेज योर हैंड. जो पुराने घर होते थे उसमें दादी वगैरह लोग, तुम्हारी मम्मी ने भी अगर किया होगा तो मम्मी के भी मम्मी से पूछोगे तो पता चलेगा कि मम्मी ने भी मे भी किया होगा, या मम्मी से या दादी से बात करोगे, नानी से बात करोगे तो गांव में ये करते ही थे. दे यूज्ड टू मेक फ्लोरिंग. जो फ्लोर होती थी घर की, मिट्टी वाले जो घर होते थे. मैम मेरी चाची है, उनका भी मड़े से ही हाउस बना है गाँव में. हाँ, अभी प्लीज म्यूट योरसेल्फ. म्यूट कर दो. मैम हमारी नानी के यहाँ भी करते हैं. मैम मेरी मम्मा ने बनाई है. हाँ, म्यूट नाउ. म्यूट म्यूट म्यूट. नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव यू फ्रॉम द क्लास विदाउट वार्निंग, क्योंकि बहुत बार बोल दिया म्यूट करने के लिए. नाउ सी इन दिस हाउस. इस हाउस में तुमको दिख रहा है ना, ये फ्लोरिंग बना रखी है इन्होंने मिट्टी की. तो इसमें मड है, मिट्टी है, हस्क है. हस्क मतलब सूखी हुई घास है, एंड काउ डंग. ऑल द थ्री थिंग्स आर देयर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, देन इट वॉज द टर्न ऑफ रूफ टू बी मेड. जब उनका पूरा वॉल्स बन गया, फ्लोर बन गया, अब उनको घर की छत बनाना था. तो फ्लोर रूफ बनाने के लिए बाबा मेड अ फ्रेम बाय जॉइनिंग स्ट्रिप्स ऑफ वुड. लकड़ी के स्ट्रिप्स को ऐसा जॉइन करके, तुम लोग अपनी नोटबुक से जब क्लास में आते हो तो नोटबुक्स को यूज करके ऐसे बनाते रहते हो ना, खेलते हो जब तुम लोग, व्हेन यू प्ले विद योर नोटबुक्स, तो नोटबुक को ऐसा रख के यू मेक अ रूफ, है ना. मेनी टाइम्स आई हैव सीन चिल्ड्रन, बच्चे क्या करते हैं, ऐसे 2 नोटबुक्स को ऐसा करके रख देते हैं और फिर इसके नीचे एक नोटबुक रख देते हैं, तो ऐसा रूफ बन जाता है. ऐसा बाबा ने भी एक फ्रेम बनाया. उस फ्रेम के ऊपर दे हैव टू पुट द दिस थिंग strips of wood and fix it on the 4 walls. वो जो 4 walls बनाई थी उन्होंने, उसके ऊपर उन्होंने फ्रेम को फिक्स कर दिया. सी, if it is made in this way, सी ऐसे 4 walls बने हैं. लाइक पीछे के वॉल तो हमें नहीं दिखेंगे, है ना. इसके ऊपर उन्होंने यहाँ पे एक वुडन फ्रेम बना दिया. वुडन फ्रेम, इस वुडन फ्रेम के ऊपर दे कैन मेक अ रूफ. ऐसे एक रूफ बना दी. रूफ का मतलब छत बना दी. ये रूफ किससे बनाई होगी उन्होंने? दे हैव मेड दिस रूफ यूजिंग कीकर एंड नीम ब्रांचेस. ओके, बाबा मेड अ फ्रेम बाय जॉइनिंग स्ट्रिप्स ऑफ वुड एंड फिक्स्ड इट ऑन द 4 walls. 4 walls पे उसको फिक्स कर दिया. We put branches of underline it of neem and कीकर trees on the frame. उस फ्रेम के ऊपर नीम और कीकर की लीव्स ब्रांचेस को लगा दिया. वो लगाने से ये फायदा होगा कि वहां पर इंसेक्ट्स नहीं आएंगे, सो दैट टर्माइट्स वुड नॉट हार्म द दिस थिंग वुड. जो टर्माइट्स होते हैं, टर्माइट सबको पता है, दीमक. हाँ, टर्माइट में एक टर्माइट का ऐड भी आता है. जो दीमक होते हैं जो लकड़ी को खाते हैं, क्रिकेट बैट को एक बार दीमक मैम आपने बताया था पहले. मैंने पहले भी एक बार शायद दीमक दिखाया था. वो जो दीमक होता है टर्माइट, हमने इसके पहले के लेसन में भी किया था. दिस टर्माइट ईट्स द वुड. तो अगर हम नीम और कीकर के ब्रांचेस लगाते हैं तो टर्माइट उस लकड़ी को जो फ्रेम लगाया है 4 walls के ऊपर, इट विल नॉट ईट इट, उसको नहीं खाएगा. So what is the use of using neem and kikar branches? The termites and other insects would not harm the wood. ये पूरा अंडरलाइन कर दो. अम्मा put old gunny bags on this and covered them with the mud. अम्मा ने क्या किया, उसके ऊपर गनी बैग डाल दिए. गनी बैग का मतलब गोनी होता है ना, जिसमें चावल आता है. उसमें चावल वाले गनी बैग के अंदर मिट्टी भर के उसको इसके ऊपर इसलिए रख दिया, जब जोर से हवा आएगी
तो वो जो लकड़ियां लगाई हैं ब्रांचेस ऑफ द सीकर एंड नीम, दे विल नॉट फ्लाई अवे। नाहिद, शैल आई रिमूव यू फ्रॉम द क्लास? नाहिद, क्लास से निकाल दें क्या? पीछे बैठो। वेयर इज योर टेक्स्ट बुक? शो मी योर टेक्स्ट बुक। नाहिद, टेक्स्ट बुक दिखाओ मुझे। तो व्हाई यू आर कमिंग क्लोजर टू द फोन? फोन के पास में क्यों आती है बार बार कैमरा के पास? ओके, तो अम्मा पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन दिस एंड कवर्ड देम विद द मड। अम्मा ने उसके ऊपर और ओल्ड गनी बैग को डाला, गनी बैग में मिट्टी डाला, उसको कवर कर दिया। मोस्ट ऑफ द हाउसेस अराउंड आवर हाउस वर मेड लाइक आवर्स। सबने, जो भी कैंप से लोग आए थे और जिनको वहां पे घर मिले थे, उन सब ने इसी तरह का घर बनाया था। अ फ्यू वर डिफरेंट, उनमें से कुछ घर थोड़े अलग थे। बट आई लाइक्ड माई हाउस द बेस्ट, इट वॉज जस्ट लाइक आवर ओल्ड हाउस। उसके मम्मी पापा ने वैसा ही घर बनाया जैसा घर उनका पाकिस्तान में था। ओके, नाउ फाइंड आउट एंड राइट, टॉक टू एनी वन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स। अपने ग्रैंड पेरेंट्स से आसपास कोई ओल्ड, कोई अंकल आंटी, दादा दादी, नाना नानी होंगे तो उनसे तुम बात कर सकते हो, और किसी भी एल्डरली पर्सन से। एंड फाइंड आउट व्हेन शी और ही वाज 8 और 9 इयर्स ओल्ड। जब तुम्हारी नानी माँ या दादी माँ या दादाजी या आसपास कोई अंकल होंगे जो एल्डरली होंगे, उनसे, अगर दादा दादी नहीं है घर पे तो उनसे बात कर सकते हो कि जब वो 8 और 9 इयर्स के थे तो वो कहाँ रहते थे, उनका घर कैसा था, क्या उनके घरों के अंदर टॉयलेट होते थे, एंड इन विच पार्ट ऑफ द हाउस, किस घर के किस पार्ट में वो लोग खाना बनाया करते थे। जैसे नाउ वी हैव सेपरेट पार्ट फॉर एवरीथिंग। बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, योर सेपरेट रूम, स्टोर रूम है, टॉयलेट्स है, किचन है। ऐसा पहले के घरों में नहीं होता था। घर के बाहर छोटा सा ऐसा एक बाउंड्री बनाते थे, वहीं लोग खाना बना लेते थे। मोस्टली पीपल इन अर्ली डेज, बहुत पुराने जमाने में, टॉयलेट के लिए भी दे यूज टू गो आउट, या तो बाहर जाते थे या उनके घरों के बाहर टॉयलेट बना रहता था, घर के अंदर नहीं होता था। इन विच पार्ट ऑफ द हाउस वॉज फूड कुक्ड, ये पूछ सकते हो उनसे। ये सब कुछ पूछ के मम्मी से पूछ लेना, मम्मी बता देगी। अ लॉट ऑफ मड वॉज यूज व्हेन चेतन दास हाउस इज मेड। वाई? जब चेतन दास का घर बना था तो बहुत सारी मिट्टी क्यों यूज की थी? All these 5 questions you have to do yourself. Okay, now underline this. Sohna village is in Haryana. इसको underline करो। सोहना विलेज हरियाणा में है। Ask the children, ask the, ये तो छोड़ दो। You have to locate Haryana in the map of India. Like I showed you this. जो तुम्हारा मैप पुराना वाला इंडिया का होगा, उसमें कल मैंने बिहार, उत्तर प्रदेश, ये दोनों बोला था। And now you have to mark this Haryana in the map of India. Okay. So till now what all things we all have read, हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा? Who will tell me? भूमिका पांचाल, tell me this story is about a man whose name is? इसमें स्टोरी पढ़ी है हमने, चेतन दास। चेतन दास। चेतन दास यूज्ड टू लिव वेयर? पहले कहाँ रहता था चेतन दास? पाकिस्तान। पाकिस्तान में। इन विच प्लेस? ओके, म्यूट योरसेल्फ। ईशा पालीवाल, टेल मी इन विच प्लेस ही यूज्ड टू लिव अर्लियर? कौन सी प्लेस में रहता था पाकिस्तान में? गाजी खान, डेरा गाजी खान, डेरा गाजी खान। वो पहले डेरा गाजी खान रहता था। Why he had to leave his place? उसको अपनी जगह क्यों छोड़ के आना पड़ा? खुशी निश्चल, टेल why he had to leave his place? Because of the partition of the country. Krishank, tell me, after partition of the country, when Chetan Das came from Pakistan to India, first at the first instance, at what place he had come? कौन सी प्लेस में आया था वो? दिल्ली। Delhi. In Delhi, where he used to live? In Delhi, he used to live in a camp. Diksha, tell me. हाँ, Diksha, tell me. After leaving that camp, वो कैंप छोड़ के जब उनको घर मिला था तो at which place he moved on? कौन सी प्लेस में मूव ऑन करके घर बनाया? हरियाणा। हरियाणा में। what place was that? What was the name of? सोहना विलेज। जिससे पूछा सिर्फ वही बच्चा बताएगा और कोई नहीं बताएगा। स्वयश, now tell me, when he came to Sohna village in Haryana, हरियाणा में जब वो सोहना विलेज में आया, what all things he used to make his house?
घर बनाने के लिए, फ्लोर और वॉल बनाने के लिए क्या क्या यूज किया? मड, मड, वुड, मड प्लस वुड, वुड. वुड नहीं, आई आस्क्ड यू फॉर द वॉल्स एंड द फ्लोर. फ्लोर और वॉल के लिए वुड थोड़े ना यूज किया था. वॉल और फ्लोर के लिए क्या यूज किया था? काउ डंग एंड हस्क. नीम. No. This is for floor and wall. And then for making roof. Roof के लिए branches of neem and cedar. कौन बच्चा काउडंग बोल रहा है? तुम लोगों को समझ नहीं आता, सुनते नहीं हो ठीक से. वॉल और फ्लोर बनाने के लिए मड, काउडंग, हस्क और वाटर यूज किया. और रूफ बनाने के लिए, छत बनाने के लिए ब्रांचेस ऑफ नीम एंड किकर यूज किया. अच्छा, मनस्वी कुचेरिया विल टेल मी व्हाट इज द यूज ऑफ यूजिंग काउडंग के. काउडंग यूज करने से क्या फायदा होता है? To keep insect away. To keep insects away. And Jalaj, mute. Jalaj, tell me what is the use of using this neem and kikar branches? Raghav Singh Rao, you tell. What is the use of using these branches of neem and kikar? To make the roof of the house. What is the use? Why I use only neem and kikar? Vineet, you tell. Vineet. For protect from termites. The wood will not be affected by the termites. Now then what? Leaves cannot affect by termites. Are not affected by the termites. Then what his mother did so that these branches will not fly away? उसके लिए उन्होंने क्या किया सोनाक्षी दशोरा? Yes, ma'am. What she did so that those branches and that roof will stay safe. वो roof stay safe रहे, उसके लिए उन्होंने क्या किया था? Who knows answer? Raise your hand. किसको पता है उन्होंने क्या किया था at the end? नहीं पता? Raise your hand if you know answer. Yes, Vineet tell. मैम उन्होंने चावल के ऐसे पोते रख दिए थे उनके ऊपर ताकि कीकर और नीम की डालियां उड़ ना जाए. क्या रख दिए थे? क्या रखे थे? बनी बैग चावल के पोते. हाँ, so that they would not. अच्छा, what he used to make the frame for putting that roof. किस चीज का फ्रेम बनाया था for putting the roof? Wooden frame he made wooden frame to make the roof. So remaining part we'll do tomorrow, and tomorrow we'll finish this lesson. Okay, it is very long. मैम पाकिस्तान को 14 अगस्त को मिली थी आजादी और अपन को 15 को. ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जब इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ था तब मैंने बताया था कि 14 अगस्त को दे सेलिब्रेट देयर इंडिपेंडेंस डे. उनका इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को होता है और हमारा इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को होता है. क्योंकि जब वो सेपरेट हुए थे तो उन्होंने वहां पर अपना इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया होगा. इफ यू वांट टू सी दिस तो वाघा बॉर्डर की बहुत सारी वीडियोस आती हैं जहाँ पे प्रियांशी बिहेव प्रॉपर्ली. तो व्हाट दे डिड, वाघा बॉर्डर की इफ यू सी वीडियोस तो वहां पे तुमको इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर दिखाई देगा जहाँ पे रिट्रीट होता है, एंड यू विल फील वेरी नाइस. So if you can see वाघा बॉर्डर का वीडियो then you'll understand this thing. और भी रीड करो अफगानिस्तान वाला जो अभी चल रहा है, that also news you should see and read. Okay, that's all for today. Take care of yourself. Thank you and have a nice day. Thank you, ma'am, for Bye.